attention of this august House towards a matter of great public importance that Omicron COVID variant is spreading in various states like Kerala, Karnataka, Maharashtra, Delhi, and even case has recently detected in Chandigarh. I want to ask the government what step it has taken to stop spreading of Omicron virus in Haryana and what compensation the government will give to the COVID victims who died. Government gave a statement on the floor of the House. अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। I am grateful to honorable members of Haryana Legislative Assembly, Shri Chiranjeev Rao, Shri Abhay Chautala, Shri Balraj Kundu, and Shrimati Kiran Chaudhary. अगर किसी का नाम रह गया हो तो वो भी ऐड कर देंगे. For raising an important issue related to curtailing the spread of newly discovered COVID-19 variant Omicron and the compensation being paid to the families of the persons who lost lives due to COVID-19. I would like to inform my honorable colleagues that state government has not left any stone unturned to curtail the spread of COVID-19. The state has well fought the two previous waves of pandemic and has been the front runner among all the states. I would like to brief this august House regarding the new Omicron variant of COVID and preparations of the state for tackling the same. On 26 November 2021, WHO designated the variant B11529 a variant of concern as Omicron. The first case was reported from South Africa on 24th November 2021. Europe, including United Kingdom, South Africa, Brazil, Botswana, China, Ghana, Mauritius, New Zealand, Zimbabwe, Tanzania, Hong Kong, and Israel are at-risk countries. Till date, 6 cases of Omicron has been reported in Haryana. Case 1. The patient named Samarth Gulati, age 23 years, is a resident of UK and has travelled alone to India via UAE, Dubai. He was travelling to meet his relatives in Gurgaon. He was tested positive at the airport and is in isolation since 14/12/2021. Government isolation facilities in Delhi and is asymptomatic. Case 2. On December 17, 2021, forenoon, another Omicron positive case named Abhinandan, aged 18 years, was cross-notified by State Surveillance Unit, Delhi. The patient is law student and was travelling along from UK to back home in Gurgaon on vacation. He was tested positive at the airport and another sample was also taken at LNJP Hospital, Delhi and is asymptomatic. Case 3. On December 18, 2021 night, an Omicron positive patient named Parveen Kumar, aged 55 years, was cross-notified by State Surveillance Unit, Delhi. He was travelling from UK to his residence in Gurugram and was symptomatic on arrival. He was found
tested positive at Delhi airport. Patient is isolated in Max Hospital, Saket in Delhi since 13/12/2021 and now symptomatic. He was also accompanied by his wife who was tested negative at airport and allowed to go home. All these three patients have never entered Haryana. They are out of Haryana and are being treated at Delhi, two in LNJP hospital and one in Max hospital. Apart from this, as per verbal communication received from IGIB, Delhi, a Canada returnee, Nikita Sani, who arrived Delhi, who arrived on 13/12/21, had tested COVID positive on 14/12/21. Her sample was sent for WGS and has been found positive for Omicron variant. On 20/12/2021, her two primary contacts, mother and aunt, have also tested COVID positive. Her aunt Anupama Ganju, a resident of Delhi, is presently staying with Nikita. Her mother and aunt samples have also been sent for WGS sampling. All three have been quarantined at a private health facility in Faridabad. Nikita's personal physician, also with staff, were advised for CBNet for COVID-19 to ensure tracing of COVID-19. As per the list of international travelers being shared with state government by airport authorities, 22,918 international travelers have been taken under active surveillance and conducted 17,933 RT-PCR tests. Out of these, 7 were found positive and further sent for genome sequencing to Delhi. Aggressive IEC activities are being done to promote COVID-19 appropriate behavior in public, and strict adherence to protocol is ensured. State government has established 22 government molecular labs for testing RT-PCR tests. COVID-19 vaccination status 3,11,86,292 doses have been given till 19th December 2021. First dose 1,91,10,472, 93%, and second dose 1,20,75,820, 59%. State has earmarked sufficient number of COVID health facilities with isolation, oxygen, support, and ICU beds and ventilators for the treatment of COVID patients, along with adequate oxygen supply and stock of COVID-related drugs and consumables. As compensation to the families of the persons who have died due to COVID, state government is providing ex gratia amount of rupees 50,000 for all the Haryana residents who died due to COVID. Ex gratia amount of rupees 2 lakh for BPL card holders aged 18 to 50 years.
special ex gratia grant of ₹5 lakh for employees, regular, contractual, ad hoc, outsourcing, etc., and special compensation financial assistance of ₹20 lakh for frontline workers. State government has also implemented Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Life Insurance Scheme of ₹50 lakh for health care personals. चिरंजीव राव जी। मंत्री जी ने अभी अपना जवाब दिया। शायद आपको ध्यान होगा पिछले जो सत्र हुआ था सेकंड वेव से पहले, तब भी मैंने यही ध्यान आकर्षक लगाया था और तब भी आपकी तरफ से बहुत बड़ी बातें कही गई थी। पर हरियाणा को किस तरह से सेकंड वेव में जूझना पड़ा ये हम सबके सामने है कि किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाए, वेंटिलेटर्स नहीं मिल पाए। अगर वेंटिलेटर कहीं पे था तो टेक्नीशियन नहीं था जो उस वेंटिलेटर को चला पाए। अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जब फोन किया डिप्टी कमिश्नर को, क्योंकि सीएमओ ने मेरे को जवाब दिया कि हमारे पास वेंटिलेटर तो है पर वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है। तो आप बताइए मुख्यमंत्री जी, क्या हालात होंगे जब हमारे पास एक चीज है जिसको चलाने वाला ही नहीं है। तो मैंने मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि कितने हमने स्टाफ ऐसा किया, स्पेशल टेक्नीशियन, जो इन वेंटिलेटर्स को चला सके या ऑक्सीजन मशीन्स को चला सके। इसके अंदर मैं पढ़ रहा था, एक और चीज पूछी गई थी कि गवर्नमेंट जो बेड्स हैं वो कितने बढ़ाए गए, उसका जवाब इसके अंदर नहीं है। कितने वेंटिलेटर्स और हमने लगाए उसके बारे में इसके अंदर जानकारी नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि फर्स्ट डोज जो है वो 93% लोगों को लगा है और सेकंड डोज जो है सिर्फ 59% लोगों को लगा है। तो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर कमी आ रही है, या तो हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे या लोगों के अंदर इसके बारे में जो कमियां हैं हमें बताना चाहिए कि भाई आप क्यों इस चीज को नहीं कर रहे हैं। एक टेस्टिंग जो है वो कम हमारी हो रही है और जहां तक मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है हमें पता चला है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, जो वेरिएंट है कोविड का, ये 3 टाइम्स फास्टर फैलता है। तो अगर वर्स्ट केस सिनारियो अगर हमारे देश के अंदर होता है तो एक स्टडी ये बताती है कि करीबन 13 लाख केसेस हमारे देश के अंदर एक टाइम पे हो जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या तैयारी हमारी उसके लिए है। ये तो वैसे हमारे परव्यू के अंदर तो नहीं आता, पर आपको पता होगा इंडियन क्रिकेट टीम अभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैचेस खेलने गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहां से भी बहुत लोग साउथ अफ्रीका गए होंगे मैच देखने के लिए। जब वो लोग यहां पर आएंगे, जबकि हमें यह पता है कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा ये ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और अभी मुख्य हमारे मंत्री जी ने यह भी कहा कि हरियाणा के अंदर कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। आपको याद होगा सेकंड वेव जब आई थी बहुत देर तक हमारे यहां पर कोई केस नहीं आया था, पर जब हमारे हरियाणा के अंदर केस आने लगे तो सबसे ज्यादा केसेस हमारे गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद के अंदर आए। और मुझे लगता है सरकार को याद होगा कि किस तरह से हाहाकार मचा ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की वहां पर डेथ हुई। हमारे यहां पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हरियाणा के अंदर कोई नहीं मरा, पर हम सब जानते हैं कि कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन मिलने की वजह से नहीं हुई या प्राथमिक सुविधाएं जो हमारी कमी थी उसकी वजह से नहीं हो पाई। तो मेरा जो आपसे सवाल मुख्य रूप से यही है कि हम ये बताएं कि आपने क्या फैसिलिटीज बढ़ाई हैं। अभी हम लोगों की जो कमेटी थी वेलफेयर ऑफ एससीज एंड बीसीज, उसने ये कहा था कि जो टैबलेट्स हैं वो बांटे जाएंगे उन बच्चों को। अब तक ये नहीं पता चल पाया कि कितने टैबलेट्स वहां पर बचे हैं, क्योंकि ये वैसे तो एजुकेशन का मामला है, पर क्योंकि स्कूल, आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी, क्योंकि स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को टैबलेट जो अब तक नहीं मिल पाए वो तो कैसे पढ़ पा रहे होंगे। हर बच्चे के पास तो इतना मोबाइल नहीं होते। विषय हेल्थ तक आपने जो ओमिक्रॉन के लिए पूछा है उसको नहीं, रिलेट ना एक बात बताइए, उसको रिलेट ना करें। आप एक बात बताइए, जो अपनी मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरा एक रिलेटेड कैसे नहीं है जी। आप एक बात बताइए, ओमिक्रॉन के लिए वेरिएंट के लिए तैयारी पूछ रहे हो, एक सुन लीजिए, और आप लैपटॉप्स पूछ रहे हो कि बच्चों को कब तक देंगे। ये रिलेटेड कैसे हो गया? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने ये कहा ऑनलाइन क्लास, अच्छा अध्यक्ष जी ऑनलाइन क्लासेस क्यों चल रही हैं? वो सिर्फ इस वजह से चल रही हैं क्योंकि कोविड की जो दिक्कत है वो इस देश के अंदर है। तो यही सवाल मेरा है
क्यों उन बच्चों को अभी तक क्यों नहीं मिला? इट इज अ रिलेटेड टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, आई एम ऑन द टॉपिक। मेरा ये है कि इसके अंदर आप बताइए कि आप क्या कारण है। मिनिस्टर को एक बार एड्रेस करके ये बचाव इसके अंदर ये भी तो आएगा, अगर ये टैबलेट अगर बच जाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उस वजह से, वो इसकी वजह से, तो इट्स ऑल रिलेटेड। ये मेरा सवाल उसके अंदर है। मंत्री जी, आप बाद में जवाब इकट्ठा देंगे या पहले? नहीं, मैं साथ साथ दे जाता हूं, कोई बात नहीं है। जहां तक टेस्टिंग की बात की है मेरे मित्र ने, तो 1,42,23,617 सैंपल टिल डेट टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से 7,72,197 वर फाउंड पॉजिटिव, 7,61,903 पेशेंट्स हैव बीन रिकवर्ड। रिकवरी रेट इज 98.67%, 98.67%, and 10,061 deaths have occurred. Fatality rate is 1.30. As per COVID facility is concerned, COVID health facility in the state, total facilities 1097, dedicated COVID hospitals 69, dedicated COVID health center DCHC 588, dedicated COVID care centers 440, availability of bed, isolation beds 59,932, total isolation beds for pediatrician patients 5,367, oxygen supported beds 16,757, ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड्स फॉर बच्चों के लिए 3,865, आईसीयू बेड्स 5,974, आईसीयू बेड्स बच्चों के लिए 2,140, वेंटिलेटर्स 2,385, वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए 719। गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैव मोर देन 10,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड एंड 650 आईसीयू बेड्स, और मेडिसिन का स्टॉक्स भी हमारे पास पूरा है। को तो मैं वो भी पढ़ के सुना दूं। पीएसए प्लांट्स 75 प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन हेल्थ डिपार्टमेंट, 75 प्लांट्स, 72 आउट ऑफ विच आर functionally. Additionally, 54 PSA plants have been installed in private hospitals. Apart from 50 apart from 75 plants installed in health department, in medical college also, LMO tanks have been provided. Existing 30,000 liter, construction 10,000 liters. KGMC Karnal 10,000 liters. MEMC Agroha 10,000 liters. Total 1,10,000 liters LMO plants have been added to the system for oxygen. And status of PSA plants, PGIMS Rohtak 3,833 LPM लीटर पर मिनट कैपेसिटी का वहां पर पीएसए प्लांट लग चुका है। बीपीएसजीएमसी खानपुर 2,000 LPM, SHKMC GMC नल्लड़ 3,000 LPM, KCGMC करनाल 2,250 LPM, SABB GMC छबियाना 2,250 LPM और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज 1,000 LPM। ये हमने एडिशनल
सेकंड वेव के बाद ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया है प्रदेश में, और जिस स्तर पर हम चल रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। इतनी ऑक्सीजन हम कर रहे हैं। हम ना केवल सरकारी अस्पतालों में भी मैंने कहा कि सब में पीएससी प्लांट लगाओ, और प्राइवेट में भी आदेश जारी किए कि 50 बेड से ज्यादा का जो भी अस्पताल है अपनी जरूरत के मुताबिक वो पीएससी प्लांट्स लगाए। कुछ क्लैरिफिकेशन रहेगी इसमें? मंत्री जी ने वैसे तो बता दिया कि करीबन 2000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, पर ये जरूर देख लीजिएगा कि उसको चलाने वाले टेक्नीशियंस जरूर हों। 2000 आपके पास, क्या उनके प्रशिक्षण दिया गया है उनको चलाने के लिए? और आपने अभी भी ये नहीं बताया कि एडिशनल डॉक्टर्स या स्टाफ आप लोगों ने लगाया है, उसको क्या परीक्षण दिया गया है इस चीज को करने के लिए? और मैंने एक और सवाल किया था, भाई जो सेकंड डोज है वो 59% ही है, उसके अंदर कमी क्यों आ रही है? और आखिरी तो यही है कि जी आप लोग बूस्टर डोजेज जो है कब लगाने शुरू करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड डोज लगे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। आपकी क्या उसके अंदर है कि कब आप लोग ये बूस्टर जो शॉट्स हैं ये कब आप लोग लगाएंगे? देखिए चेयरमैन महोदय, मैं जिला वार, क्योंकि इसके जो कवच है वो सबसे पहला तो है वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीनेशन अगर हो जाए, दूसरा है ये मास्क, अगर हम मास्क लगाकर रखें, और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 काम हैं इससे बचने के लिए जो कि बहुत जरूरी है। मास्क के लिए मैंने सभी एसपीज को वायरलेस मैसेज कर दिए कि लोगों से मास्क डलवाएं, नहीं डालते तो उनका चालान करें। 500 रुपए पर हेड का चालान हमने रखा हुआ है, वो सख्ती से करें क्योंकि इसकी सख्ती से पालना जरूरी है। मैंने ये भी आदेश जारी करे कि हमारी एसपीओ के मुताबिक गैदरिंग के लिए जितनी हमने हाजिरी रखी है, अलाउ की है, डिप्टी कमिश्नर अपनी टीमें बनाकर रैंडमली, मैं नहीं चाहता कि सारों की करें, लेकिन रैंडमली चेक करें कि कहीं उससे ज्यादा संख्या तो नहीं है, उतनी ही उसमें संख्या हो। और हमारी, जैसा मैंने बताया कि हमारी ऑक्सीजन की फर्स्ट डोज का भी मैंने बता दिया कि 93% है, सेकंड का भी बता दिया 60% है। मैं इसमें जिलावार भी बताना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आप सबका भी सहयोग लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये एक मूवमेंट है, जन आंदोलन है, इसमें हमको सबको लगना है। हम भी अपने अपने जिले में वैक्सीनेशन के लिए कैंप्स लगाएं, कैंप अरेंज करें। आप कहीं भी कैंप अरेंज करें, मेरी टीम वहां आकर इंजेक्शन लगाएगी। आप एक बार सीएमओ को इन्फॉर्म कर दो, हमारी टीम वहां जाकर इंजेक्शन लगाएगी, क्योंकि हमें 100% सेकंड डोज का टारगेट अचीव करना है। अगर हमें इस ओमिक्रॉन के खतरे से बचना है तो हमें सेकंड डोज का टारगेट अचीव करना है। उसके लिए सरकार भी कुछ कदम उठा रही है, वो भी मैं बताऊंगा कि हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन जो एक जन आंदोलन के माध्यम से काम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। पहले भी लोगों ने लगवाया, फर्स्ट डोज में भी कई जगह पर कैंप लगाए, टेंट लगाए, अपने कुर्सियां लगाई, डॉक्टर को बुलाया और वैक्सीनेशन की। इसीलिए हमारा 93% हो गया। और मैं बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में तो 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, फर्स्ट डोज भी सेकंड डोज भी। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों 100% हो चुकी है। अंबाला में फर्स्ट डोज 106%, सेकंड डोज 97%। भिवानी में फर्स्ट डोज 92%, सेकंड डोज 69%। चरखी दादरी में फर्स्ट डोज 96%, सेकंड डोज 83%। फरीदाबाद में फर्स्ट डोज 112%, सेकंड डोज 75%। ये 112% पर क्वेश्चन लोग उठा सकते हैं क्योंकि कुछ शहरों में माइग्रेटरी लोग बहुत ज्यादा हैं। कोई बाहर से आगे भी अगर लगवा लेता है तो हम मना नहीं कर रहे हैं,
हम लगा रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए, हम लगा रहे हैं, इसलिए ये 112%। फतेहाबाद में फर्स्ट डोज 81%, सेकेंड डोज 41%। गुड़गांव में फर्स्ट डोज 129%, सेकेंड डोज 101%। एक बार गुड़गांव के लिए तो मुझे थप्पड़ दो, गुड़गांव ने अच्छा काम किया। हिसार में फर्स्ट डोज 79%, सेकेंड डोज 42%। झज्जर में फर्स्ट डोज 98%, सेकेंड डोज 62%। जींद में फर्स्ट डोज 78%, सेकेंड डोज 44%। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है जींद के सारे साथियों को कि मिलके ये काफी लो है, इसको हम बढ़ाएं, लगाएं मेले, हम उसमें लगवाएं वैक्सीन। कैथल में फर्स्ट डोज 84%, सेकेंड डोज 56%। करनाल में फर्स्ट डोज 89%, सेकेंड डोज 57%। कुरुक्षेत्र में फर्स्ट डोज 85%, सेकेंड डोज 53%। महेंद्रगढ़ में फर्स्ट डोज 87%, सेकेंड डोज 57%। नूह में, नूह बड़ा चिंतनीय जिला था और उसमें 32% था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 50% से नीचे वाले जितने जिले थे देश के सारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हमारे नूह में भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हम भी थे, मैं भी था उसमें, मुख्यमंत्री जी भी थे, लेकिन उसका असर यह हुआ कि नूह जहां पर लोग टीका नहीं लगवाते थे, आज फर्स्ट डोज 64% हो गई। मैं नूह के विधायक साथियों को कहना चाहूंगा कि वो भी कुछ दिन के लिए बाकी काम छोड़ के लोगों को प्रेरित करें, कैंप लगाएं और ये दोनों डोजें 100% आप वहां पर लोगों को लगवाओ। पलवल में फर्स्ट डोज 80%, सेकेंड डोज 45%। पंचकुला में फर्स्ट डोज 107%, सेकेंड डोज 83%। पानीपत में फर्स्ट डोज 94%, सेकेंड डोज 52%। रिवाड़ी में फर्स्ट डोज 98%, सेकेंड डोज 70%। रोहतक में फर्स्ट डोज 92% और सेकेंड डोज 58%। सिरसा में फर्स्ट डोज 86%, सेकेंड डोज 48%। सोनीपत में फर्स्ट डोज 92%, सेकेंड डोज 54% और यमुनानगर में फर्स्ट डोज 91%, सेकेंड डोज 54%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉलंटरली लोग लगाएं, अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, या और भी जहां जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां जहां पर है वहां पर जिसको सेकेंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा मंत्री जी, हमने तो पिछली बार भी आपकी सारी बात मान ली थी, पर आप क्योंकि एक बहुत अच्छे मंत्री हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना और प्रदेश के सेहत का भी ध्यान रखना। धन्यवाद।